करेक्ट, यस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर कौन सा भाई शिवम? वेरी गुड बेटा, 1 है। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1, state the meaning of subsidy. Subsidy is basically a payment made by the government to producers so that they can charge less. बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया में एलपीजी। क्या है बेटा? एलपीजी कर बेटा, ये तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही है, ठीक है बेटा। State the meaning of marketable surplus. Marketable surplus refers to the difference between the total of output produced by a farmer and his self consumption from that output. In other words, it is that portion of total produce that the farmer sells in the market. कंजप्शन के बाद जो बचा हुआ माल है वो बेच के मार्केट में पैसे कमाए, उसको बोलते हैं मार्केटेबल है। Explain the meaning of economic planning. According to the Planning Commission, economic planning means utilization of countries' resources and different development activities in accordance with the national priorities. State the central objective of Indian planning. Growth with stability and social justice were the central objectives of the economic Indian planning. Why was the objective of modernization of immense importance for India? This objective was important because at the time of independence, the Indian economy was plagued with superstitions and gender. हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम बड़ा बिलीव करते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई तो काम खराब होगा, वो जा रही है अपने घर यार, करेक्ट है। ऐसे बहुत सारे कि सुबह सुबह ऐसा बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा, है ना, घर से ही खा के नहीं निकलना चाहिए, ऐसे बहुत सारी बिलीव्स। तो मॉडर्नाइज की बहुत नीड है, तभी अल्टीमेटली बाहर निकलेगी चीज़ों को, है ना। जैसे इंडिया में बहुत सारी वुमेन काम नहीं कर रही है, उसके पीछे एक बिलीव काम कर रहा है कि यार उनको घर मैनेज करना है, घर मैनेज करने के लिए हाउस हेल्प ले आओ। Has India achieved the targeted growth rate of industrial production during the various plans? India has managed to achieve the targeted growth rate of industrial production only during the first 5-year plan. In other plans, the actual growth rate was nowhere near the targeted growth. Define a plan. Plan is a document, is a showing detailed scheme, program strategy worked out in advance for achieving an objective. It is specific action which aims to help the organization for a country in achieving its objective. What is a perspective plan? यहाँ पर एक वर्ड आता है बड़ा अच्छा यार, डायरेक्टिव। और ये ध्यान रखना, डायरेक्टिव क्या है बेटा? देखते हैं। प्लान डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव इन 20 years. तो पर्सपेक्टिव आर लॉन्ग टर्म, डायरेक्टिव आर रेफर टू अ पर्सपेक्टिव प्लान। आप उसको एक बीएसटी में पढ़ते हो, स्टैंडिंग और सिंगल यूज। In agriculture, India still in dependence on rainfall. Yes, agriculture India is still dependent on rainfall due to lack of irrigation facilities. How do the PSUs facilitate the development of backward regions? PSUs are generally opened in the backward areas so that more employment opportunities are related in these areas, and it is also able to produce economically. What is small scale industry? A small scale industry is presently defined as one whose investment in fixed assets does not exceed rupees. What is meant by foreign trade? Foreign trade refers to the exchange of goods and services among different countries. India is leading exporter of handicraft. Why? Handicraft is a traditional industry of India and skilled workers are easily available here. That's why India is a leading exporter of handicraft. What are high yielding variety seeds? HYE seeds are better quality seeds which have a maturity shelf life ज़्यादा है, आप लिखना, which has a more shelf life, are highly productive and are disease resistant. करें बेटा, the yield from these seeds exceed 25% to 100% as compared to yields from normal seeds imported from Mexico. याद है? चलो भाई, 3 marker. क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा मेरे साथ रीड करना बेटा ताकि एनर्जी रहे। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गिव वन एडवांटेज of socialist economy. Advantage socialist economy, it promotes equitable distribution of income. Disadvantage socialist, it suffers from the drawbacks of bureaucratic. Bureaucratic क्या होता है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। सेटअप इन द फॉर्म ऑफ रेड टेपिज्म एंड करप्शन। तो यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, एक बार रेड टेपिज्म क्या होता है? एक बच्चे ने मेरे से व्हाट्सएप पे पूछा था। डिले इन दी, आपने पूछा डाउट मेरे से व्हाट्सएप पर, किसी ने व्हाट्सएप पूछा था अभी। डिले इन दी वर्क, डिले इन दी गवर्नमेंट वर्क, क्योंकि वहाँ पर प्रोसीजर होते हैं। क्या होते हैं? प्रोसीजर, और प्रोसीजर फॉलो करने में जो टाइम लगता है। वाई डिड द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन दी एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री डिक्लाइंड इन दी पीरियड 1980 to 1990? द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज फॉलन बिकॉज of the reasons enumerated below.
During this period, there was substantial growth in Indian industrial sector. With growth in industrial sector, the domestic demand for agriculture products increased as they were being in the factories. तो इसलिए बढ़ा. दूसरा, during this period, there was a tremendous increase in the population of the country. As population grows, the domestic demand for agriculture products also. करेक्ट है. अब देखो ये क्वेश्चन इनवर्स आया आपके पेपर में कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है ना, यही तो आंसर है, वो यही तो क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन था और सबका गलत था. सबका मतलब सबका, सबको सजेस्ट करना पड़ा कि ये लिखना है, ये नहीं लिखना. करेक्ट है. एंड इट इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. रिसोर्स आपके सामने है, आपने नहीं पढ़ा और वहां जाकर रोगे कि सर हाय हाय ये क्या आ गया. रिसोर्स आपके सामने यूज करो भाई. द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्टेट्स, few crops in the initial stages. The green revolution was based on the use of high yielding variety seeds. जिसको क्या चाहिए बेटा? Reliable irrigation and financial resource to buy better inputs. Because of this, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में था, पक्का गारंटेड बोल रहा हूं मैं. Because of this, restricted to the more affluent states of Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Further, the use of HY seeds primarily benefited to the rice and wheat growing regions. जिन पे पैसा उन्होंने ऑप्ट कर लिया और जिन्हें पैसा नहीं ऑप्ट नहीं कर पाए. नेक्स्ट बेटा, thus the benefit of green revolution was initially restricted to few states. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है चैप्टर में, बहुत ही बढ़िया. Give the difference between what? Private and private sector is that part of the economy in which private entrepreneurs operate. Public sector is that part of the economy in which state act as a entrepreneur. Reliance और महानगर MTNL है ना, और फ्यूचर देखो MTNL भी रिलायंस का हो गया अब तो, है ना. पावर. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1986 कैटेगराइज इंडस्ट्रीज. फर्स्ट कैटेगरी शेड्यूल ए, देन बी, देन उसके बाद सी. द फर्स्ट कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ कितनी इंडस्ट्री? नंबर पता है आपको? नंबर 17. सेकंड कैटेगरी कितने नंबर? 12. और थर्ड रेस्ट है ना. आप लिख के आना कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 नहीं, स्केड्यूल ए, बी और सी. स्टेट 3 करेक्टर्स ऑफ PSUs. लेबर इंटेंसिव होता है, लेस कैपिटल इंटेंसिव होता है, और ये SSI के बारे में बात कर रहा है. छोटा बिजनेस है, लेबर चलाएगी, कहीं भी उठा के ले जाओ, कहीं भी उठा के ले जाओ. इंडिया में एक रेवोल्यूशन आया था, उस रेवोल्यूशन से साबुन की बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन गई थी. आई स्टिल रिमेंबर कि लोग अपनी ओमनी वैन पर, पहले अपने गांव में छोटी सी फैक्ट्री में साबुन बनाते थे, फिर ओमनी वैन में बहुत सारे साबुन डाल के, कपड़े धोने वाला साबुन एक्चुअली बहुत ज़्यादा था उसमें, निरोल के नाम से आता है, ब्लू ग्रे से कलर का, डार्क मिट्टी कलर गंदा सा. तो वो अपनी कैप डाल के गलियों में, शहरों की गलियों में, अर्बन सिटी की गलियों में बेचते थे. तो बहुत राइज पे था. क्यों? 2-4-5 हज़ार रुपये में, हमारे शाहजहाँ में भी एक फैक्ट्री थी, मुझे अभी भी याद है कहाँ पर, 2-4-5 हज़ार रुपये में आप वो फैक्ट्री डाल सकते थे. फैक्ट्री में कोई बड़ी मशीन की जरूरत है, सो वी क्रिएट अ पर्टिकुलर केमिकल, मिक्सचर ऑफ केमिकल, फिर केमिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू केक, केक विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, और स्मॉल पार्ट से बन गया साबुन. कर बेटा, इजी था ना. तो वो इजी इंडस्ट्री थी. तो वो SSI का एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है. और भी ऐसे बहुत सारे SSI के एग्जाम्पल मार्केट में घूम रहे हैं. प्लास्टिक बॉटल्स देखते हो आप, छोटी छोटी. पेंट खरीदते हो ना, पेंट, तो पेंट में एक छोटी सी प्लास्टिक बॉटल आती है. करेक्ट है. देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसमें छोटी सी प्लास्टिक बॉटल आती है, दवाइयों से लेकर पेंट तक. इट्स अ वेरी सिंपल इंडस्ट्री. ये शिवम भाई चलाते हैं. देयर इज़ वन पर्टिकुलर मशीन, करे बेटा, बड़ी सी. उस मशीन में आप इनपुट डालते हो प्लास्टिक के दाने, वो मेल्ट होकर प्लास्टिक की, मेल्टेड प्लास्टिक की शेप बन जाती है गर्म. इट इज़ अ हॉट मेल्टेड प्लास्टिक. नाउ यू कैन गिव इट एनी शेप. तो उसके लिए आपको डायमंड डालना है, डायमंड डाल के एयर ब्लो कर दो, वो शेप बन जाती है ना. इट कैन बी स्टार्टेड विद फ्यू लैक्स एंड कुड बिकम अ ह्यूज बिजनेस आउट ऑफ इट. राइट बेटा. तो कहीं भी ले जा सकते हैं, छोटे से कमरे में चल जाती है, हाफ, इससे हाफ कमरे में चल जाएगी फैक्ट्री, उससे भी हाफ में भी. व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IPR 56? टू प्रोवाइड व्हाट? लीडिंग रोल टू पब्लिक सेक्टर, टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, or to promote social welfare at the cost of a private profit. Why do countries take part in foreign trade? According to classical economists, countries participate in foreign trade because they cannot produce all the goods and services competitively, right? जो चीज़ अपन नहीं बना सकते बाहर से लेकर आएंगे. A country's resources are suitable only for the production of certain specific goods and services. Therefore, the country should produce only those goods for which its resources are suitable.
thus giving it at a cost advantage and import other goods from foreign countries. क्यों करते हैं हम import export बेटा? क्योंकि there are multiple such things जो हम बना सकते हैं, there are multiple such things हम नहीं बना सकते, there are multiple such things जिसमें competition करना मुश्किल है. तो जिसमें मुश्किल है नहीं बना सकते हो बाहर से ले आओ, जिसमें आसान है बना सकते हैं वो घर पे बना लो. सिंपल बात. ऐसा कौन बोल रहा है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. कौन बोल रहा है? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहता है भाई साहब फॉरेन ट्रेड इसलिए करना है ताकि आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करो, लिविंग और स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, जिससे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेटर हो जाए. सच्चे दरबार की. ठीक है. हाँ आ सकता है, अभी बताता हूँ, आएगा पीछे. गिव टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फॉरेन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक. ये बेटा द एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आर, ये क्वेश्चन आया था अभी. मिक्स्ड इकोनॉमिक, जिनको भी लग रहा है ना कि सर आप बार बार ये फ्लेक्स क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन आया था, ये बिलीव है कि आप ये कर लोगे तो आपके सारे पेपर में क्वेश्चन आते होंगे आपको. सच में पेपर ऐसे ही आता है लवे, ऐसे ही आता है भाई. जिनको नहीं हो रहा बिलीव, वो जिन्होंने करे पेपर उनसे पूछना. मिक्स्ड इकोनॉमी गिव्स एडिक्वेट स्कोप टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू कोएग्जिस्ट and contributes towards economic development. In this, planned economic development ensures stability and balanced development. Disadvantage point number 1. The balanced economy cannot effectively control the private sector. Mixed economy cannot effectively control क्या लिखा है बच्चे? Private sector industries which are outside the गवर्नमेंट प्रीव्यू. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेप्टिज्म. ये बड़ा प्रॉब्लम है यार. सरकार कर बेटा मिक्स इकोनॉमी में ना चीजें जो प्राइवेट में बन गई हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो रही नहीं. करप्शन होगा, उसमें पंगा होगा. गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं ना, उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि आप खोल लो. और जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में उसमें रेटिज्म बहुत ज़्यादा है. तो डिसएडवांटेज हो गए ना दो. डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्लान ऑब्जेक्टिव्स. So they are long-term objectives to be achieved over a period of time. कर बेटा, long-term objectives over a period of time, right बेटा? Their objectives to be achieved in a short period, say 1 to 5 years. They are common to all plans. They are vary from plan to plan. Clear बेटा? They aim at structural changes. मैं गारंटी देता हूँ कि आंसर आपको पता ही नहीं होता ये वाला बिना रीडिंग करे. They aim at quantitative changes. आपने पेपर दिए बेटा बहुत सारे, उसका फायदा तो आपको मिलेगा. दे आर ब्रॉड गोल्स विच डेवलपमेंट प्लान सीक्स टू अचीव. दे आर प्लान्ड विद ग्रेटर प्रिसीजन. इंडस्ट्रीज हेल्प टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. हाउ? इंडस्ट्रीज हेल्प इन दी पॉइंट नंबर 1 पे जा रहा हूँ डायरेक्टली. हेल्प इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री सच एज डैम्स, रेलवेज एक्सेट्रा. तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है बेटा? ग्रोथ बढ़ाता है. पॉइंट नंबर 2, पेन चला रहे हो आप सब लोग, रात में रीड कर रहे हो ना पक्का? पॉइंट नंबर 2, इंडस्ट्रीज हेल्प इन इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बाय सप्लाइंग वाटर एग्रीकल्चर सेक्टर विद मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल इंडस्ट्री पेव द वे फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ. और लास्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स अ कंट्री टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट. सारी इंडस्ट्री अपने घर पे आ गई तो हम सेल्फ रिलायंट हो गए. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ो जल्दी फटाफट मेरे साथ बेटा क्वेश्चन. Do you think that industrial licensing and industrial soaps were used to? अब आप मैं क्या बोलूँ यार, अब एक बार और मन कर रहा है कहने का. पेपर में था ये क्वेश्चन सच में. 17 वाले में था या 16 वाले में, आई डोंट नो, पर था. 17 में था क्योंकि वो आरपीवी का पेपर था, वो ये क्वेश्चन था उसमें. जिन्होंने पेपर नहीं दिए, इफ दे आर लैकिंग इन पेपर्स, दे कैन गो फॉर वन थिंग. एटलीस्ट मैसेज टू केशव भाई, हैव दोज पेपर्स अलॉन्ग विद आंसर की, so that at least you can read, and once you'll read those questions you'll definitely come back to PYQs again कि यही तो आना है. to gain that trust. नहीं हो रहा है केशव भाई से मांग लो, मैं बोल दूंगा 5 पेपर आपको भेज देंगे. लास्ट वाले वो भी प्रीवियस जिनका मैं बोल रहा हूँ था वो वाले पेपर. ओके. डू यू थिंक दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड जॉब्स आर यूज्ड टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी? यस. हमें ग्रोथ भी चाहिए और सोर्स भी चाहिए, राइट बेटा?
तो हमें क्या चाहिए बेटा, द लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज introduced in the IPR of 1956 to promote regional equality. As per this policy, because of this policy, private entrepreneurs were allowed to establish a new industry or to expand the capacity of the existing units only after obtaining license from the government. Strict rules and regulations were required to be followed before a license was provided. However, if the new unit was proposed to be established in a backward region, then the license was provided on simpler terms. This promoted industries to establish new units in backward region, thereby ensuring all-round development of the country. Also, to further provide the industrialists to establish new units in the industrially backward areas, various soaps benefits से अब नहीं पढ़ने होते आपको, पहले था डिलीट हो गया है, ठीक है. बेनिफिट्स लाइक सरकार उनको प्रोविजन ऑफ चीप लैंड, लेबर, टैक्स हॉलीडेज वगैरह देती थी पहले. कर बेटा, गिव द एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. Point number 1, trade encourage specialization on the basis of comparative advantage. This enable a country to obtain foreign goods at a cheaper price. कर बेटा. An increase in export trade widens the country's total market. Production of more goods will further lower the cost of production, leading to lower cost per unit. It widens the scope of industrialization. It encourages what? Competition. आप मेजर वर्ड पढ़ो. It encourages what? है ना. It leads to what? Innovation. International trade acts as an engine of growth. पैसा आएगा बहुत सारा, कर बेटा, और उससे ग्रोथ बढ़ेगी, राइट बेटा. It helps the country to earn valuable foreign exchange. तो हर कंट्री को चाहिए दूसरी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज, वो मिलेगा. Okay, we are ending up with this chapter also. In 7 more questions बस. वही तो था कि प्रॉफिट कमाने वाले को बेचेंगे नहीं. एक क्वेश्चन बेटा आया था भी, प्रॉफिट कमाने वाले को बेचना क्यों नहीं है, तो उसका ट्रांसफॉर्म वर्जन एक बार एग्जाम में आया था. ऐसा आइटम बता रहे हैं कि नवरत्ना वाले को अपने पास क्यों रखा. बात तो एक ही है, राइट बेटा. प्रॉफिट कमाने वाले को क्यों रखा, नवरत्ना क्यों बोला, एक ही बात है, राइट बेटा. बिकॉज वो पैसा दे रहे हैं, प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है. ओके, 5-year plans हैव नॉट बीन एबल टू एड्रेस. पॉवर्टी ठीक नहीं कर पाए, इन्फ्लेशन पे काम नहीं कर पाए, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस नहीं कर पाए, इनएडिक्वेट, आपको हेडिंग मैच करनी है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए या एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पाए. इंफ्रा मतलब ऑल चीज़ें, अरे मतलब एडिक्वेट हो तो प्राप्त, इनएडिक्वेट मतलब अप्राप्त, रिक्वायर्ड जितना नहीं है हमारे पास. भाई 1991 के बाद से हमने ये ट्राई किया कि इंफ्रा बढ़े, पर एकदम नहीं बढ़ा. आज अब जाकर कहीं बढ़ना शुरू हुआ है ना. 1991 के बाद 5-year प्लान्स में तो पैसे ही नहीं थे, कर ही नहीं पाए. ट्राई तो किया भाई, वो हिट ही नहीं हुआ, तभी तो एलपीजी लेके आया ना. मिक्स्ड इकोनॉमी इज द बेसिक फ्रेमवर्क प्लेइंग इन इंडिया. मिक्स्ड इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी एज वेल एज द free play of market. It is the basic framework planning in India. In this economy, the market will provide whatever goods and service it can produce economically, and the government will provide essential goods and services which the market fails to produce. In India, agriculture and most of the industries and service sectors are in private hands. Market forces of demand supply have free role in determining prices in various markets. Over the period of time, many big business houses have come into being and have been growing, such as Reliance, Infosys, Bajaj, etc. After independence, the government recognized the need to provide infrastructure. तो इसलिए सरकार ने क्या फॉलो किया, मिक्स्ड. अकेले हो नहीं पाएगा, पैसा है नहीं, इंफ्रा बनाना है, साथ में बिजनेस डेवलप करना है, तो लेट्स गिव चांस टू अदर सेक्टर ऑल्सो. सब मिलकर साथ में काम करते हैं. दैट वाज द स्ट्रैटेजी. एग्रीकल्चर सेक्टर, यस बेटा, वेलफेयर ऑल्सो. एग्रीकल्चर सेक्टर डीम्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. वाई? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है किसमें, जीडीपी में. मैक्सिमम लोगों को वेज गुड्स मिलते हैं, सैलरी नहीं मिली तो सामान. ओए, वेज गुड्स, सैलरी नहीं मिली तो कम से कम सामान तो मिलता है. पूरे दिन आपने काम किया, पैसे नहीं मिले तो गुड्स मिल जाएंगे, खाना तो खाओगे. अरे बेटा, दिहाड़ी नहीं मिली तो माल मिल जाएगा, ठीक है. देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट, वो वाला नहीं जो सोच रहे हो. एम्प्लॉयमेंट मिलती है,
सप्लाई रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के लिए, इसलिए एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड में हम सिर्फ एग्रीकल्चर ही बेच रहे हैं, स्पाइसेस। इंस्ट्रूमेंट्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक एरिया से दूसरे एरिया ट्रांसपोर्ट, ट्रक कहाँ यूज रहे हैं, इंडस्ट्री तो है नहीं हमारे पास एग्रीकल्चर में। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, बढ़िया आंसर है। एग्रीकल्चर के बारे में आप क्या नेगेटिव पॉइंट जानते हो, उससे जैसा क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये कह रहा है कि पॉजिटिवली वाई एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट। तो आप लिख के आओ कि रेनफॉल खराब था, खराब हो जाएगा आंसर, इसलिए आंसर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कस द वेरियस टेक्निकल रिफॉर्म्स, ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, promoting the use of HYV seeds, use of chemical fertilizers, use of insecticides and pesticides, ये टेक्निकल रिफॉर्म्स है, करेक्ट है। इसमें डिफरेंस भी आता है टेक्निकल वर्सेस, है ना, यस, है ना, टेक्निकल वर्सेस लैंड और जनरल रिफॉर्म्स, करेक्ट बेटा। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और मशीन मीन्स ऑफ, एक ही बात है, मीन्स ऑफ कल्टिवेशन, कर बेटा, क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा। वी लेफ्ट विद ओनली 2 क्वेश्चन इन दिस चैप्टर एंड देन विल टेक अ लॉन्ग चैप्टर 1। ब्रीफली, ये तो आसान हो रहा है, पॉइंट पढ़ने हैं सिर्फ। ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल, क्योंकि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंडस्ट्री चाहिए। एग्रीकल्चर होगा मेजर सोर्स, सर्विस में मिलता होगा हमें बहुत ज़्यादा काम, पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल सकती है भाई साहब, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कर बेटा। पॉइंट नंबर 3, एनहांसिंग फर्दर द इकोनॉमिक ग्रोथ, कर बेटा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कंपैरेटिवली वहाँ पे बढ़ सकती है, राइट बेटा। यस बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, राइट बेटा, शेयर इन जीडीपी, स्ट्रेंथनिंग दी क्या बेटा, इकोनॉमी, राइट बेटा। With the growth of capital good industry, the country is able to produce a number of goods in large quantities at a low cost, करे बेटा। और उसके बाद it helps establishment of infrastructure like dams बने, railways बना, ये फायदा हुआ हमें। और हमें क्या मिला, इंडस्ट्रियलाइजेशन has helped the country to become the self reliant, पढ़ लिया ना आंसर ऑलरेडी हमने। इंफ्रा बनाया, पैसा आया, करे बेटा, और हम सेल्फ रिलायंट हो गए। आपने बहुत मेहनत करी है, करेक्ट है। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, उसका मोटिवेशन है कुछ। मैं पहले आया था यहाँ पर तो मेरा मन था कि एकेडमी है, मुझे उससे बड़ा काम करना है। फिर फॉर्चुनेटली हमको चांस मिला, हमने बड़ा काम भी किया, है ना, अनफॉर्चुनेटली कर भी रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैसेज विच इज़ देयर इन द मार्केट राइट नाउ अबाउट ज्ञान मंत्र, अबाउट निशांत सर, मैं नहीं जानता, करेक्ट है, क्योंकि वो कोई नहीं पढ़ सकता, कोई पॉजिटिव है, कोई कैसा है, कोई कुछ है, राइट बेटा। पर मैं एक बात जानता हूँ कि जब मेरे पास चांस आएगा ना पढ़ाने का, जैसे अभी चांस मिला ना मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, सो आई ट्राइड माई बेस्ट, मतलब 6 की जगह 5 नहीं कर सकता, 6 वॉज ऑल्सो अ बेस्ट टाइम, है ना। टिल दी नाइट पढ़ाया। नंबर ऑफ पेपर्स, चाहे वो स्पेस बुक करने की बात हो, चाहे वो इवैल्यूएशन की बात हो, जहाँ जहाँ बेस्टेस्ट में कर सकता मैंने बेस्ट किया। बिलीव मी, अगर मेरे अंदर एक बार भी ये आए ना कि मैं और कुछ कर सकता हूँ, तो मैं 1 मिनट भी लगाऊंगा और कुछ करने में। मैं ऐसा ही हूँ, मेरे को ऐसे ही आइडियाज़ में मज़ा आता है ना। इट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन अभी ज्ञान मंत्रा में, जहाँ पर एक्चुअली हमारे पास अभी बहुत सारे फंड्स नहीं होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर अभी नए एडमिशन्स आएंगे एंड देन यू विल बी हैविंग द न्यू कैपिटल ऑफ दिस साल, है ना, इस साल की। बट तब भी मैंने स्कूल बुक करा विदाउट इवन आस्किंग ऑन सर। ही केम टू मी सेड क्या हुआ, मैं स्कूल बुक कर दिया, कहते पैसे, मैं कितने पैसे, कह रहा खर्चा पूछा कर, मैं कहा भाई एक लास्ट शॉट है यार, इससे बच्चों में चेंज आ जाएगा। बोला भाई तू बहुत इमोशनल है, जेन्युइनली एक लास्ट शॉट ही तो, खर्चा ही तो आएगा, देख लेंगे, ले लेंगे, तो बहुत इमोशनल। मैं कहा हाँ, क्योंकि यार समवेयर इट इज़ नॉट दिस कि ये उनका रिजल्ट है। मैं कल किसी को बोलता कि आई पर्सनली टेक दिस रिजल्ट, ये मेरा रिजल्ट है। जब मैं चौड़ में बुक में डालूंगा लिख कर कि इसका ये रिव्यू है, इसका वो रिव्यू है ना, फोटो लगाऊंगा आपकी, तब जो उसको क्रेडिट मिलेगा वो मैं ले जाऊंगा ना यार, करेक्ट है। तो मैं उसके लिए तो काम कर रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन है, मेरा रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, मेरा मोटिवेशन है बेटा। इफ़ आई विल बी रॉन्ग इन दिस मोटिवेशन, मेरा ही इंटेंशन अगर गलत हुआ तो आप तक चीज़ नहीं पहुँचेगी। और मैं आपको जेन्युइन दुनिया की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल हर्ट टू हर्ट बात बता रहा हूँ। दुनिया में आपको ये 50 बार देखना भी पड़ेगा, फेस भी करोगे, और हर बार ये सच निकलेगा। जो मैं अंदर से आपके बारे में सोचता हूँ ना, वही माल आप मेरे से गेन कर पाओगे, एक भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं गेन कर पाओगे। जितना मैं अंदर से आपके लिए फील करता हूँ ना, करेक्ट है। क्यों ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि जब अपने बच्चों से मिलते हैं तो बहुत सुकून मिलता है,
और लोग भी तो इंसान है, बच्चे ही क्यों ऐसे होते हैं? बिकॉज बच्चों के अंदर पेरेंट्स के लिए वो जो प्यार है ना, वो उनको फील हो जाता है उस टाइम पर। क्यों ऐसा होता है कि कोई बच्चा जब हमें रिप्लाई करता है बोलते हैं कि सर आपके वजह से नंबर आए हैं, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी इसकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब ज़िंदगी भर वो जो भी अचीव होगा, आप चाहे कनाडा भेज दो उसको, बच्चे को, सरदार को, चाहे दिल्ली रखो, वो जब मौका मिलेगा फ़ोन कॉल मिलने का जुगाड़ करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? बिकॉज उसको वो कनेक्शन डिलीवर हुआ, उसको लगा कि हाँ यार इस आदमी ने मेरे कुछ किया है। करेक्ट? तो मेरा तो वो मोटिवेशन है, मैं उसी मोटिवेशन में काम कर रहा हूँ। उस मोटिवेशन में ना मुझे अपने आप को जेन्युइनली, क्यों 6 घंटे क्लास, क्यों 6 बजे उठना, कैन हैव गुड लाइफ यार, 9 बजे उठूंगा, 2 बजे तक पढ़ाऊंगा, घर चला जाऊंगा। क्यों? सो दैट कि और प्रोडक्टिव क्या करा सकते हैं, और क्या टाइम बचा सकते हैं, और क्या चला सकते हैं, राइट बेटा? सो ये मोटिवेशन डेफिनेटली, अगर मैं अकेले घूमता रहा तो काम खराब हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेस करना पड़ रहा है, अपने आप को खींचना पड़ रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी यार, खींचना पड़ रहा है, पर दिस विल डेफिनेटली गिव यू ग्रेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। करेक्ट है? बी रेडी फॉर दिस चैलेंजेस लाइक दिस, इसके लिए रेडी हो जाओ, करेक्ट बेटा, लाइफ में। क्योंकि 10-10 घंटे ऑफिस बैठना पड़ेगा, 15-15 घंटे काम करना पड़ेगा, तब टायरलेसली काम करोगे, सुबह शाम देखे बिना पैसा कमाओगे। अगर वो मोटिवेशन आ जाएगा तो वहाँ पर और बेटर कर पाओगे, है ना? वंस अ विनर ऑलवेज आ, और वंस अ लूजर ऑलवेज आ, ये माइंडसेट बन जाता है फिर, क्योंकि उसका कि मैं हार जाऊंगा यार, मुझे डर लग रहा है यार, मैं हार जाऊंगा। और वंस अ विनर ऑलवेज अ विनर माइंडसेट हो जाता है कि मैं इस प्रॉब्लम से भी बाहर अपने आप को, आई ब्रेक एवरी बैरियर यार, मैं हिट करूँगा, छक्का मारूंगा वहाँ के उड़ के, यॉर्कर उठाऊंगा 6 करेक्ट। रीज़न भी क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा है। सो मुझे लगता है कि आपको पुश करना पड़ रहा है। मैं शक्ल देख रहा हूँ आपके, आपको बहुत सारा पढ़ने में दर्द हो रहा है, पर थोड़ा दर्द लेने से थोड़ा फ़ायदा बढ़ जाएगा। तो आप मुझे चैप्टर में बताना कि फ़ायदा बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। एक क्वेश्चन ही बचा है बस, ठीक है? डिस्कस द रोल ऑफ एसएसआई इन द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, 1, फेवरेबल एम्प्लॉयमेंट कैपिटल रेशो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लेस कैपिटल, प्रमोट्स एक्सपोर्ट, प्रमोट्स दी हैंडीक्राफ्ट। कितना आसान आंसर है? फुलफिल द नीड ऑफ मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। तो छोटी इंडस्ट्रीज जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स बनाना, इट्स अ स्मॉल बिजनेस, एंड दिस स्मॉल बिजनेस इज डूइंग बिग टास्क। ये प्लास्टिक बॉटल यहाँ बनती है 2 बड़ी कंपनी का नाम बताता हूँ। एक है डॉक्टर फिक्सिट, उसके पास जाती है, और वो 1000 करोड़ की कंपनी है पिडलाइट। कर बेटा, उसको बॉटल देते हैं हम, तो वो बड़ी इंडस्ट्री चल रही है बिकॉज ऑफ आवर प्लास्टिक बॉटल। 1 दूसरा एग्जाम्पल, एक बार तो वहाँ कर चुकी, दूसरा, सो देयर इज वन पर्टिकुलर बिग कंपनी, है ना, मॉर्फीज, करे बेटा, या फिर कोई मेडिकल कंपनी उठा लेते हैं, एमवे, जो मेडिसिन वाली कंपनीज है, उनको हम प्लास्टिक बॉटल देते हैं, और वो प्लास्टिक बॉटल में हमें दवाइयाँ पैक करके, करे बेटा, वापसी करते हैं। पेंट इंडस्ट्री, एशियन पेंट का पेंट बॉक्स में आता है, पर टू चेंज दैट कलर वो प्लास्टिक में आता है, उसको स्टेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेनर। आई डोंट नो कि आपको पता नहीं पता, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से आए तो हमको पता है स्टेनर, स्टेनर की बॉटल बोलते हैं। स्टेनर इज अ कलर, कि आपको व्हाइट पेंट में वो स्टेनर डाल दोगे तो इट कैन टर्न इनटू एनी कलर। तो स्टेनर की सारी बॉटल्स, एशियन पेंट की हो या बर्जर की हो, किसी की भी हो, सारी प्लास्टिक बॉटल्स हैं, करे बेटा। एंड देयर आर सच न्यूमरस एग्जाम्पल्स, 1-2 नहीं है ये, कितने हो सकते हैं? सो अ स्मॉल बिजनेस इन अ वेरी स्मॉल एरिया कॉल्ड झिल मिल, फ्रेंड्स कॉलोनी, है ना, ट्रॉनिका, इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग दिस लार्जर इन द बिग सेक्टर। नेक्स्ट बेटा, इन्वेस्टमेंट आउटपुट एट पार विद लार्ज इंडस्ट्रीज। तो मतलब लार्ज इंडस्ट्री से कंपेरेटिवली इन्वेस्टमेंट है क्या मेरे पास? कंपेरेटिवली कम। इट इज एस्टिमेटेड दैट अ स्मॉल स्केल नीड्स टू 48,000 टू प्रोड्यूस 1 लाख वर्थ ऑफ आउटपुट, while large scale unit needs 43,000 to produce the same। कर बेटा, डिस्कस द प्रोग्रेस मेड इन द इंटरनेशनल ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या क्या चेंज हुए? वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड बढ़ा क्योंकि हमने अलाउ कर दिया। कंपटीशन चेंज हुआ, कैसे? एग्रीकल्चर का सेक्टर कम हो गया। कन्वेंशनल आइटम्स ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट सच एज जूट, टी, फूड ग्रेन मिनरल हैज फॉलन। Percentage of manufactured goods in the volume of trade increased due to the growth in the industrial sector. Direction of foreign trade, कहाँ करा हमने ट्रेड बेटा? So our major UK, जब क्या बढ़िया आंसर है यार, आएगा तो आपको याद नहीं होगा। UAE, चाइना, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, UK, जापान एंड बेल्जियम। This is in sharp contrast to the scenario at the time of independence when our international trade was confined largely to UK, USA and Commonwealth countries. This is the chapter number 2. So what we are done with so far?